پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے اس کا حجم ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. خارجی قرضے اور اندرونی قرضے، اور اسی طریقے سے جو ہماری جو سالانہ جو ہدف ہے وصولیوں کا، واجبات کا، ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس سے کم 3 یا 4 گنا زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں. پاکستان اس وقت بہت سی مشکلات سے گزر رہا ہے. ہمسایہ ملک ہم سے کہیں آگے نکل گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر کے افسران سے خطاب. کہا پاکستان پر اس وقت بہت زیادہ قرض ہے. ایف بی آر نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ایف بی آر افسران کے اعزاز میں تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی شرکت. ایف بی آر افسران نے ٹیکس معاملات کے حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسروں میں شیلڈ تقسیم کی. تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو نہ صرف ری لانچ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ ہم نے اس کا دائرہ کار پنجاب کے تمام شہروں تک بڑھایا. 2 لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈلیوری ہے فری میڈیسنز کی، 2 مہینے کا جو سٹاک ہے وہ ان کو آج سے ان کے گھروں پر 2 لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ. مفت ادویات کی فراہمی گھر کی دہلیز پر. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کا افتتاح کر دیا. کہا 2 لاکھ مریضوں کو مفت ادویات ان کے گھر تک پہنچائیں گے. قلیل مدت میں عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ دیا ہے. 200 کلینک آن ویلز کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں. لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہسپتال بنائیں گے. آئندہ چند ہفتوں میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فیلڈ ہسپتالوں نے کام شروع کر دیا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں گزشتہ روز 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا. فیلڈ ہسپتال پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں عوام کو مسلسل سہولیات فراہم کر رہے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کے بعد پیپلز پارٹی وزارتیں لینے کے لیے بھی تیار ہے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے 8 وزارتیں لینے کا فیصلہ کر لیا. پہلے مرحلے میں 4 وزارتیں پنجاب سے لی جائیں گی. دوسرے مرحلے میں وفاق میں وزیر مملکت بنائے جائیں گے. پنجاب میں بھی اہم وزارتیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کو بنانے کا امکان ہے. گندم خریداری بحران حکومت کے لیے بن گیا امتحان. گندم سکینڈل پر میاں نواز شریف سخت غصے میں. قائد نون لیگ نے وزیر اعظم کو طلب کر لیا. شہباز شریف گندم سکینڈل میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کریں گے. سابق وزیر اعظم کا کاشتکاروں کو کسان کارڈ فوری جاری کرنے کا حکم. گندم درآمد سکینڈل کی تحقیقات. وزیر اعظم شہباز شریف سے سربراہ گندم کمیٹی کامران علی افضل کی ملاقات. ذرائع کے مطابق کامران افضل نے وزیر اعظم کو گندم معاملے پر اب تک کی پیش رفت بارے بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی گندم کمیٹی کے سربراہ کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ہدایت کی گئی. گندم زیادہ خریدار کم، کسانوں کا بڑھ گیا غم. پنجاب حکومت نے گندم خریداری کے لیے تاحال عملی اقدامات نہ کیے. باردانہ نہ ملنے اور سرکاری سطح پر گندم خریداری نہ ہونے سے کسان پریشان. 3000 سے بھی کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور. پنجاب اور وفاقی حکومت کے صرف کھوکھلے دعوے.
मियां नवाज शरीफ एक बार फिर पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला की इजलास तलब। दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। पाकिस्तान में आइन की और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। ये कोई रस्मी बात नहीं है। जमात इस्लामी को सब लोग जानते हैं कि उसने आइन के क़याम के लिए, उसको बनाने के लिए, जिस तरह से उस वक्त जब ये 73 का आइन बना था तो की रोल प्ले किया था तमाम बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर और हुकूमत से नेगोशिएट करके एक इत्तफाक़ राय के ज़रिए से एक आइन पास हुआ था। बहुत बड़ी कामयाबी थी और आज तक वही बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। फॉर्म 47 पर आने वाली हुकूमत तो काबिल कबूल नहीं हो सकती, इसलिए कि वो एक जालसाजी के जरिए से आई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली ज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, मुल्क में जंगल का कानून है, आज़ाद मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बिनाना रिपब्लिक बन गया है। एक जंगल का कानून है। एक आज़ाद मुल्क जो है ना, इस तरह नहीं चलाया जा सकता। जब मुल्क में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हों, नाजायज़ मुकदमे बन रहे हों और किसी को इज़हार राय आज़ादी का वो न हो, इज़हार का मौका न दिया जाए, पब्लिक को जो है ना अपना मैंडेट उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जाए, मैंडेट एक को मिले उधर बिठाया दूसरे आदमी को, तो इस तरह जो है ना कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, आवाम को रोज़गार की फराहमी के लिए तरक्की की शरह बढ़ाना है। मुलाजमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने लाहे अमल तैयार कर लिया है। बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से जिम्मेदारी दी गई है। कम उम्र की शादियां कराने वाले हो जाएं होशियार। निकाह ख़वां वालिदैन गवाहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का मुसव्वदा महकमा कानून ने तैयार किया। ड्राफ्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी की इजाज़त नहीं होगी। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई के डेरे। अशिया खुरनोश की खरीदारी अवाम के लिए इम्तिहान बन गई। शहरी महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है, आटा सस्ता करके बाकी तमाम अशिया महंगी कर दी गई। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। सब्जी, चिकन और फल की खरीदारी गरीब की जेब पर भारी। लहसुन अदरक 700 और लीमू 300 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। सेब 350 और अमरूद 160 रुपए किलो में फरोख्त। मसनूई महंगाई माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहरिक। DC राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल की कारकर्दगी का जायजा लिया। खिलाफ वर्जी पर 1775 मुकदमा दर्ज, 1212 गिरफ्तारियां हुई। अफसरान की इजलास में ब्रीफिंग। तजावुज़ात के खात्मे के लिए बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने 15 साल बाद 17 नई गाड़ियां खरीदी। 23 करोड़ की लागत से खरीदी गई गाड़ियां ताहाल किसी काम ना सकी। ट्रक इस्तेमाल में ना आने से रेगुलेशन ऑपरेशन मुतासिर है। ओवर बिलिंग का मामला। लेस्को कल अपने लाइन लॉसेस फाइनल करेगा। ज़राए के मुताबिक ओवर बिलिंग न करने और एडजस्टमेंट देने पर लाइन लॉसेस में गैर मामूली इजाफा होगा। लेस्को इंतजामिया ने तमाम फील्ड अफसरान और स्टाफ की कल की छुट्टी मनसूख कर दी। हुकूमती मंजूरी के बगैर सरकारी इदारों के खिलाफ केसेस का मामला। केसेस वापस लेने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल पंजाब पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी।
वज़ीर आला मरीम नवाज के इंटर्नशिप प्रोग्राम पर भी एतराज़ात आयद। अर्बन यूनिट ने इंटर्न्स के एजाज़िये में इजाफे की तजवीज़ दे दी। एजाज़िया बढ़ाने का फैसला सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में होगा। वज़ीर आला पंजाब फ्री वाईफाई सर्विस सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने शहर में वाईफाई सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। शहरी फ्री वाईफाई सर्विस से विमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस ऐप और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाली डॉक्टर सरकारी हस्पतालों में इलाज करने लगे। जनरल हस्पताल में जाली डॉक्टर पकड़ा गया। हस्पताल में मौजूद डॉक्टर को शक की बुनियाद पर पूछगिछ की गई। मुतल्लिका शख्स अपने डॉक्टर होने का सबूत न दे सका। MS डॉक्टर फरियाद ने जाली डॉक्टर को हवाले पुलिस कर दिया। दूसरों के लिए भड़कती आग में कूद जाने वाले असल हीरो हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पर पैगाम। कहा, फायर फाइटर्स आतिशज़दगी में फंसे लोगों की कीमती जानों को बचाते हैं। फायर फाइटर्स फ़र्ज की अदायगी में हर मुश्किल चैलेंज का भरपूर मुकाबला करते हैं। फायर फाइटर्स डे पर रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में मरकजी तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान खसूस शिरकत। 2023 के बेस्ट फायर फाइटर्स में तारीफी असनाद तकसीम की। कहा, कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग्स रेगुलेशंस पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। रेस्क्यूअर्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रखा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का वासा हेड ऑफिस का दौरा। MD वासा गुफरान अहमद ने वासा के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। वासा के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने वासा लाहौर के प्रोजेक्ट्स को सराहा। DG लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इकरामुल हक की सरबराही में PLRA के वफ्द का LDA का दौरा। दोनों महकमों के सिस्टम्स के इंजमाम के हवाले से गुफ्तगू। ताहिर फारूक ने कहा, PLRA टीम के तजुर्बात और वर्किंग से फायदा उठाएंगे। आइंदा माली साल में पुलिस का नए थाने बनाने का प्लान। लाहौर समेत सूबे भर से 32 थानों की इमारत बनाने के लिए डिमांड भिजवा दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है, माली साल के तरक्याती बजट में 98 नई और जारीशुदा 203 स्कीम्स शामिल हैं। तमाम स्कीम्स के लिए 6 अरब 30 करोड़ से जायद के फंड्स मांग लिए। पंजाब पुलिस के अरबों रुपए थानों की तज़ीनो आराइश पर खर्च। थानों की चौकियां खस्ता हाली का शिकार। थाना गवाल मंडी की म्यू हस्पताल में पुलिस चौकी का बुरा हाल। सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल बन गया। सरकारी रिकॉर्ड खराब होने का खदशा। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाला फैजान बट रिकॉर्ड याफ्ता निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक टारगेट किलर के खिलाफ 2 मुकदमा थाना शादबाग और बादामी बाग में दर्ज है। टारगेट किलर कलअदम तंजीमों से भी राब्ते में रहा। CTD के मुल्जिम से तफ्तीश जारी है। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा। मैनियान ब्लॉक की ताज़ीनो आराइश का जायजा लिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का डे केयर के अलग सेक्शन की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब पुलिस में मुलाजमीन की तरक्कियों का सफ़र तेज़। इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की के लिए 194 इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड मांग लिया गया। तमाम रिकॉर्ड 6 मई तक जिलाई पुलिस ऑफिसर के दस्तखत से IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का मुतालियाती दौरा। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़शान असगर ने तलबा को ब्रीफिंग दी। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में बेहतरीन ताउन और आगाही फराहम करने पर तलबा ने पुलिस ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। आए एम्बुलेंसेस को रास्ता दें, क्योंकि पहला हक जिंदगी का। ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम जारी। CTO लाहौर की वार्डन्स को
ایمبولینس اور ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے راستہ کلیئر رکھنے کی ہدایت، سرکل افسروں کو ہسپتالوں کے باہر پارکنگ انتظامات چیک کرنے کی ہدایت۔ کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ کہا بورڈ تعلیمی نظام کا حساس ترین حصہ ہے، مکمل شفافیت ہی اصل ساکھ ہے، امتحانی مراکز کی CCTV مانیٹرنگ کے لیے ورکنگ کو جلد مکمل کیا جائے۔ چائلڈ پروٹیکشن سکول میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد، تقریب میں چیئرپرسن CPB سارہ احمد کی شرکت، بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلوز اور مختلف پرفارمنس پیش کی۔ سارہ احمد نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔